Class 12th, we'll start with the new topic, that is calculation of space occupied packing fraction in the unit cell of different types of cubic system. As in my previous videos, we have already discussed about the number of atoms that a particular unit cells of different types of cubic systems contains, and we have seen that there are different you can say unit cells, and they have different types of their cubic systems also. So what happened, the volume that is being occupied by the atoms is also different in different cubic systems. So that particular volume, or the fraction of the total volume of a unit cell occupied by the atoms present, is it is called the packing fraction. So I think you must be clear up with my statements. Let's come and focus on it. Like over here I've made a cubic this unit cell, and it has been taken from a cubic system, right? So it, you are seeing over here that I have made certain atoms, it is occupying certain atoms in it. Okay, so the point is that कि what particular you can say the volume is being occupied by these atoms in a unit cell. मतलब ये जो unit cell हमने बनाया है, इसमें आप कितने atoms को hold कर सकते हैं और कितना volume ये particular ऑक्यूपाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, उस चीज़ को आपको नोटिस, मतलब दीज एटम, ये एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, कितनी जगह घेरेंगे इस यूनिट सेल में, वो चीज़ हो जाती है आपकी पैकिंग फ्रैक्शन को. ठीक है, सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड वी आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग द पैकिंग फ्रैक्शन एंड द परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड इन different types of cubic unit cells, right? Now this is the definition I have written. What I was speaking I have written in English, and the packing fraction, you can see the definition part. You can copy this definition and we'll see that how this packing fraction is different cubic systems or cubic unit cells. Now you'll see that I'm starting with the first one, the SCC, as a simple cubic unit cell. In this I have took this diagram is clear to you, and I have made all the atoms that are present on the corner. This is the edge. Now I have made a cube, so you know that all the edges are same. So over here you should understand, the point is that now when we are seeing these types of systems or the cells, because over here we are seeing the for one single unit cell, so you have to see that these are the particular things we are seeing, that how much particular atom is occupying the space in it, right? But you know the atoms, there must be certain space also which is being empty, that is being not at all occupied by the atoms. So initially it is said that the packing fraction is related to your the volume that is occupied by the atoms, right? But you have to see the other part also, that how much space is still empty in that particular unit cell. So first we'll take out that about the first case, the packing fraction, then we'll see how much is being still remaining. Now let's start from this thing. You know that we have seen in the simple cubic system, when two spaces are in the corners, if you see them and they are touching, like these thing, we are placing it in a small part. But suppose karo कि this is the edge length and this is the one atom and this is the other atom. So this is your edge, right? दिस वॉज योर पर्टिकुलर एज, दैट इज़ ए. सो रेडियस विल बी वॉट, हाफ ऑफ द एज हो जाएगा, या फिर इसका जो जो है रेडियस एटम का, क्योंकि आधा तो शेयर कर रहा है, राइट? दिस वे वी आर फोकसिंग. तो आप रेडियस क्या कर लोगे, जो आपका रेडियस हो जाएगा वो ए का आधा होगा, और अगर ए को देखें आप तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ आर. तो दिस विल बी द केस व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द simple cubic unit system. So your edge will be twice of r will be there. I have shown you in a small diagram. Now you know that a number of atoms that is being present per unit cell, that also we know the number of atoms पर यूनिट सेल जो है हम वो भी निकाल चुके हैं कि 8 होते हैं और 1/8 हम करते हैं. आई एम नॉट पुटिंग द फॉर्मूला, क्योंकि वी नो द नंबर ऑफ एटम्स इन द कॉर्नर इनटू कंट्रीब्यूशन हम करते हैं. तो दैट वाज आल्सो कमिंग योर 1. दिस आल्सो यू नो. नाउ यू नो द वॉल्यूम ऑफ एन एटम, राइट? वॉल्यूम ऑफ एटम आपको मालूम है. वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा? एटम कैसा होगा? गोल होगा, राउंड होगा, स्पेयर होगा ना. तो वॉल्यूम ऑफ एन एटम ऑफ एन लिख लीजिए, एन एटम
विल बी अबाउट हाउ मच 4/3 पाई आर क्यूब। आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना स्पेयर का वॉल्यूम कैसे देखते हैं, तो एटम को स्पेयर पे कंडीशन कर रहे हैं आप, तो आप वही यू विल पुट द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज़ द देयर, इट इज़ अ क्यूब। ये तो आपने एटम का वॉल्यूम निकाला, कि आप क्यूब का नहीं निकालोगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेसिकली ब्रैकेट में लिख दीजिए इसे, लेकिन व्हाट इट इज़ बेसिकली अ यूनिट सेल। यूनिट सेल विल बी इक्वल टू ए क्यूब। भाई क्यूब है और एज ए है, तो हमें मालूम है कि इट विल बी ए क्यूब। नाउ यू नो दैट यू आर नॉट राइटिंग ए क्यूब। ए क्यूब के लिए यू हैव रिटन अ वैल्यू दैट इज 2r whole cube. So when you will when you will open it up, you will get 8r3 will be here, क्योंकि 2 2s are 4, 4 2s are 8। आप 3 बार खोलेंगे 2 को तो 8 आएगा और r क्यूब। सो दिस विल बी द वैल्यू। नाउ व्हाट इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा? Packing fraction will be your, I am just telling you, the packing fraction will be equal to volume occupied by atom divided by volume of the unit cell. So you can see I have written the formula, the volume occupied by an atom divided by the volume of the unit cell. So what you can do, you can put the values I am putting over here. ठीक है, तो आपने लेके नीचे लिखिएगा क्योंकि मेरी जगह कम है। 4/3 राइट पाई आर क्यूब, इसको ब्रैकेट में रखिए नंबर को, अपॉन 8r क्यूब। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, ये 8r क्यूब, तो व्हेन यू कैंसिल इट अप यू विल गेट एन आंसर 0.524 राइट। सो दिस इज योर पैकिंग फ्रैक्शन। ना दिस मच is been the space that is being occupied by the atoms in the unit cell। तो आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली यू मल्टीप्लाई इट बाय 100। ठीक है, तो आई हैव डन दैट हाउ मच द स्पेस वॉज ऑक्यूपाइड, आपने 100 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा, यू गेट इट इन परसेंटेज। ऐसे यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड और द एम्प्टी स्पेस, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ना कि इन दिस पर्टिकुलर यूनिट सेल देर आर एटम्स दैट आर प्रेजेंट राइट, बट atoms they are considering it as spare, we know it. So there must be certain spaces where these particular atoms must be not covering the space, right? So that space also you have to calculate. So what you can do, the percentage of unoccupied space will be what happened 100 माइनस, भाई 100 का ही लेके चल रहे हैं मार्जिन, तो 100 माइनस 52.4 आप माइनस कर दीजिए। सो व्हाट यू विल गेट 47.6%। तो ये है, यानी ये परसेंटेज आपका वो है दैट इज़ बीन ऑक्यूपाइड, एंड दिस परसेंटेज वो दैट इज़ 47.6 वो परसेंटेज है जहाँ पे जगह खाली है आपके पास, राइट। सो यू हैव गॉट दीज थिंग्स इवन फ्रॉम द प्रीवियस थिंग। आपने एच को देखा था ना, 2r आपने रखा था, अब यहाँ से आप रेडियस की भी, रेडियस ऑफ एन एटम निकाल सकते हैं, a/2 आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। इफ़ यू सी द डिस्टेंस, जो हम देखते हैं ना नेबरिंग डिस्टेंस जो होता है, नियरेस्ट नेबर ऑफ द क्रिस्टल्स वाला जो डिस्टेंस होता है वो d होता है, वो किसके बराबर और एज होता है। तो हमने जो स्टार्टिंग में देखा था अपना, वो सारे फॉर्मूलेज वी कैन कैलकुलेटेड ओवर हियर। So we got these 3 formulas, we have got also calculated this thing initially। what is that derivation is being asked for this topic, लेकिन बहुत सालों से in boards they have not asked you the derivation, but these things are important for your numericals or one word you can say na one word answer, maybe this portion has come, so please don't ignore it and please do it। Now class 12th we are starting with the new head of it, body centered cubic unit cell। It's again in packing fraction, but we are focusing on the BCC unit cell, right? So we are focusing on BCC, and I have made the structure for the particular unit cell, and you know how we are making this structure. The atoms are present in the corner, and centrally you can see in the body there is one of the atom is been present. Now you can see, so but we are focusing towards a broader sense of this thing. You can see this particular diagram that black the atoms are there, and over here again these two, this one and this one are the corner atoms, right? और ये बीच में जो बना है ये एक बॉडी का एटम है। अब हमें क्या करना है कि द पॉइंट इज़ दैट यू नो इट्स अ क्यूब, मे पॉसिबल माई डायग्राम इज़ नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये सब जो हैं, ये जो रेड रेड आपको लाइनें दिख रही हैं, दीज आर एजेस, right? And this black part what I have made is it's your
यू कनेक्टिंग इट फ्रॉम ए टू डी एंड दिस इज़ व्हाट द बॉडी डायगोनल, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर डायगोनल है वो बॉडी पे जो एटम रखा गया है उससे पास हो रहा है, ठीक है, और कॉर्नर्स में जो एटम्स हैं उसको कनेक्टिविटी दे रहा है, सो इट इज़ अ बॉडी डायगोनल. Now you know that in this BCC there are two atoms. It is occupying uh, it's the volume occupied by two atoms. So over here again we are saying the volume occupied by the atom. Volume occupied by two atoms. तो atom है तो भाई वही वाली बात है 4/3 and pi r cube. लेकिन the problem is that it's not related to one atom, it is related to two atom. तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, what you will get the answer, that is 8/3 पाई आर क्यूब आपको ये मिलेगा. ये वो पोर्शन है जो कि आपके दो एटम्स जो हैं इसकी इस बीसीसी में आपकी जगह घेरेंगे, राइट. सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड. नाउ वी हैव ऑलरेडी मेंशन इट. नाउ फर्स्ट वंस अगेन वी हैव टू फोकस ऑन आवर पॉइंट दैट व्हाट वी आर सीइंग. अब इधर देखिए आप ए टू डी के केस में आइए, राइट. दिस इज़ द डायमीटर. बेसिकली दिस डायमीटर इज़ हाउ मच. यहाँ पे आपके कितने एटम्स लाई कर रहे हैं, 1 2 3. हमने छोटे छोटे बनाए, बट इफ़ यू सी इफ़ यू कनेक्टिविटी 1 2 3 सो मैनी एटम्स आर देयर ओवर हियर. इधर इट्स पासिंग ओवर हियर. So what is the case? If you see, I am again making one more diagram so that you can understand it how it is there. नाउ आई हैव एलैबोरेटेड. वो छोटा था, ये बड़ा है. यहाँ एक एटम है जो कॉर्नर पे, ये एटम है कॉर्नर पर है जो आधा है, यहाँ थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है, यहाँ इधर पोर्शन आ रहा है, यहाँ एक एटम है दैट इज़ इन द बॉडी. सो जस्ट सी द डायमीटर पार्ट्स प्लीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द ए डी इज़ द डायमीटर, दैट द बॉडी डायमीटर, बट यू हैव टू सी द रेडियस. यहाँ देखिए इस एटम का इतना रेडियस है, ये आ रहा है. आप इस एटम को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक आर ये मिलेगा, एक आर आपको ये मिलेगा. इस एटम का देखेंगे ये आर यहाँ मिलेगा. तो यानी ए डी की जो एक्चुअल में वैल्यू है वो आपकी कितनी निकल के आ रही है, 4R. यू आर गेटिंग हाउ मच, 4R you are getting. Now we can see more things. I'm again I have just make a small thing. You have to go back to your again with the diagram, and over here I have made one more line. Just focus on this line, that is your AC. And this AC is it's basically what it is forming, right? This AC. And now children, please once again we are focusing on the AC. So if you want to calculate the AC, so we are making this right angle triangle ए बी सी में. आप देखिए आप ए सी को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर आपको ए सी इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट, सो व्हाट यू कैन डू, ए सी विल बी, यू हैव सीन दिस थिंग इन मैथ्स ऑल्सो, द थ्योरम्स आर देयर. सो आई एम नॉट टेलिंग द नेम्स बिकॉज इफ आई एम स्टार्ट डूइंग टुवर्ड्स दिस सो आई विल फॉरगेट माई पॉइंट. So the point is that if you want to calculate AC, so what you will do, AC square will be equal to AB square plus BC square, right? Directly you can, if you want to calculate AC's value, so AB square प्लस BC स्क्वायर अंडर रूट पे चला जाएगा ना ये चीज़. नाउ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ क्यूब. तो जो आपकी AC जो है वो भैया एक डायगोनल फॉर्म में आ रहा है. इधर ध्यान से देखिए आप. तो लेकिन AB को देख के चलिए या BC को आप लेके चलिए, तो यू विल सी दैट दीज आर एजेस एंड इट्स A वैल्यू ओनली. सो व्हाट यू कैन डू, सो आप AC को अगर आपको निकालना है तो AB की वैल्यू भी ए का होल स्क्वायर है, बी सी की वैल्यू भी इट्स अबाउट ए होल स्क्वायर. सो व्हाट यू विल गेट द आंसर, ए सी विल बी अंडर रूट 2a. दिस यू कुड सी, राइट. ए डी की वैल्यू हमने एक निकाली है, ए सी की वैल्यू हमने अंडर रूट 2a हमने निकाला है. दिस इज़ नॉट, ए इज़ नॉट कमिंग इन अंडर रूट. सो दिस वे you can easily calculate it up. Now we have to focus on one more right angle triangle, that is ACD. Let's focus on ACD. Now ACD उसको भी हम देख लें, जो कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है. सो एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ACD, है ना, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ACD पे भी आपको आराम से आपको डायगोनल मिल सकता है. देयर फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग ना. AD इज़ व्हाट, द बॉडी डायगोनल. तो ये जो बॉडी डायगोनल है आप इसको भी तो निकालोगे. अभी तक आपने क्या एक वैल्यू निकाली है, 4R निकाला, क्या वो मैच कर रही है उससे कि नहीं कर रही, क्योंकि यू हैव अदर थिंग्स ऑल्सो. सो आप ACD में जो आपका बॉडी डायगोनल है, द बॉडी डायगोनल आप निकालेंगे. Right, what will be the concept, AD under root
CD square plus AC square. Sometimes I am very slow because from one hand I am writing and from other hand I am holding my phone, so it's become very, sometimes it's very slow. And what I want to tell you, please remember that whatever the diagrams I have made over here, you will not get in the books, because all these are imaginaries one. It's my own point also. So please, you can draw the diagrams for it, and when you are making your notes, and please see it and complete it also. So I think this much is clear to you. AD, you have if you want to calculate AD from here, so how you will calculate the ADs, that is again under root of CD, and this thing under root में CD square plus AC square, इसको निकाल के you can easily calculate. Let's focus on it. ठीक है, तो हम अपना ध्यान से देखें कि हमारा CD क्या होगा. CD हमारा एज ही है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है. आपने ए स्क्वायर कर दिया प्लस AC की जो वैल्यू है वो आपने पीछे निकाली रखी थी अंडर रूट 2A का होल स्क्वायर. तो आपकी AD की जो वैल्यू निकल के अब आ रही है वो आ रही है आपकी √3A. नाउ यू हैव कैलकुलेटेड मैनी वैल्यूज़, ठीक है ना. तो आपके पास ADs की वैल्यू आ गई है. एक तो पहली हमने निकाली थी 4R, मैंने रब कर दिया बिकॉज माई पेज स्मॉल, सो 4R आई. और दूसरी हमारी AD की वैल्यू जो आई अंडर रूट 3A. नाउ यू कैन फ्रॉम दीज इक्वेशंस यू कैन टेक बोथ द वैल्यूज़ ऑफ AD. तो आपने जो भी इक्वेशन अपने लिखे, आप उनको, उन इक्वेशंस को आप लेके चल सकते हैं. तो आपकी जो इक्वेशन पीछे की थी, जो भी जिसमें आपने ADs की वैल्यू निकाली थी, आप वो इक्वेशंस को ले सकते हैं. तो 4R इज इक्वल्स टू, यू कैन पुट द नंबरिंग ऑल्सो, आई एम नॉट पुटिंग द नंबरिंग. सो 4R इज इक्वल्स टू √3A. आपकी दोनों ADs की वैल्यू आप रख सकते हैं, और यहाँ से यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A, दैट विल बी 4 एंड √3 4R एंड √3A आपकी वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ A. नाउ यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अच्छा वॉल्यूम ऑफ एटम तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आपको बेसिकली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी लेना है ना. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सो दैट इज़ व्हाट A³. सो अगेन माई पेजेस, आई रब इट अप एंड अगेन आई राइट इट. बट आपने पीछे तो A की वैल्यू निकाल ही ली है. अब आपकी जो A की वैल्यू, इट्स नॉट A3, यू विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, दैट इज़ 4√3 आपने निकाला है, R आपने निकाला है, और इसको आपको क्या कर देना है, होल क्यूब कर देना. तो व्हाट यू विल गेट द आंसर 64R³ अपॉन 3√3. जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस आंसर. बट वी हैव गॉट बोथ द थिंग्स, है ना. हमने वॉल्यूम ऑफ एटम भी निकाल लिया, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 एटम्स, एंड वी हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. तो बस पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए. पैकिंग फ्रैक्शन विल बी what, volume occupied by atoms divided by volume of unit cell. ठीक है, so whatever I have spoke I have written over here. Now you must be thinking that this portion I am using bilingual language, because this is a bit tough. If I'll completely use a English language, maybe possible it will be difficult for you all to understand it, and there are certain concepts where it's better when we speak in Hindi na, then we get it very clearly because it's our mother tongue. So we are focusing on it. I have written the formula, and now you can easily put the values over here, whatever you have calculated I am putting here. So आप नीचे लिखेंगे तो 8πr³ डिवाइडेड बाय 3 इज अपॉन 64r³ अपॉन 3√3. ठीक है. नाउ दिस मच मस्ट बी क्लियर टू यू. हमने वो फॉर्मूला लिखा, दैट वाज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. आपने दोनों वैल्यूज़ रख ली हैं और आपने कैलकुलेट करा, फिर कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकाल लेंगे. यू विल गेट द वैल्यू फॉर पैकिंग फ्रैक्शन. फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, यू विल गॉट 68%. एक्चुअली दिस इज़ वॉट वी आर, आई एम रिटन ना परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस. इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज पैकिंग एफिशिएंसी in BCC. ठीक है ना. तो समटाइम्स इन सर्टन बुक्स इन प्लेस ऑफ दिस इट इज़ ऑल्सो रिटन एज पैकिंग एफिशिएंसी. तो प्लीज़ डोंट गेट confused about it. Packing efficiency by BCC. वहाँ पे भी आप कर सकते हैं ना, पीछे जो SCC हमने निकाला है तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, वैल्यू यही रहेगी 68%.
ठीक है, हमारी यही रहेगी वैल्यू। अब वही वाली बातें हैं, अगर आपको वो निकालना है वैल्यू द हाउ मच द परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, तो फिर वही वाली बात है, वी कैन माइनस इट फ्रॉम द दिस वैल्यू शुड बी 68 को आप 100 से माइनस कर दीजिए, तो आपका वो परसेंटेज निकल जाएगा जो कि अनऑक्यूपाइड स्पेस है, राइट। ठीक है, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, जो 100 में से आप माइनस करेंगे, विल गेट दिस वैल्यू। नाउ वी हैव गॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो भैया हमने आर की वैल्यू निकाली थी √3 4a करके, है ना, ये निकाला था। फिर आपको सिर्फ कैलकुलेटर से √3 की वैल्यू पुट कर देनी है, और आप जब आर की वैल्यू देखेंगे तो आपके पास ये भी आ जाएगी 0.433a। ठीक है, आप ऐसे ही अपना वो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ना, जो है आपका द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स, है ना। सो d बराबर 2r था आपका, तो बस आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। आपकी r की वैल्यू तो आपने निकाली हुई है यहाँ पर पीछे, तो आपकी क्या है r की वैल्यू 2 इंटू √3/4a, आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप इसको कैलकुलेट करके लिख दीजिए, जो आपकी √3a/2 भी हो जाएगा। या और अच्छी तरह से आपको छोटा मोटा लिखना है तो आप, हमने एक टेबल आपको दी रखी है 0.866a, तो 0.866a होगा। ठीक है, a लगा दीजिएगा, जगह कम है। सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन, रेयर ऑफ द रेयर केस, बट दीज वैल्यूज come in your numericals as well as in fill in the blanks also. Now let's come to the next part, that is space centered cubic unit cell। और ये हमने एक पेज सेंटर FCC यूनिट सेल बनाया रखा है, और आप देख सकते हैं हमने 1 2 3 4 5 6 अच्छा 7 हो गए। तो now the next slide we'll see the face centered cubic unit cell, or I have made the diagram, and you can see from the diagram that 8 atoms are there in the corners, and you can also focus on the atoms that are present on the face. Just see 6 are there. So I have made this structure, and we'll talk about it. एंड यू नो इन FCCs, अच्छा एक बात और, FCCs के लिए बहुत से टर्म्स यूज़ करे जाते हैं। CCP भी बोला जाता है, FCC भी बोला जाता है, और HCP भी बोला जाता है। सो आई एम राइटिंग दीज टर्म्स FCC या CCP, या फिर आप ये भी कह सकते हो HCP। कुछ भी आ जाए न्यूमेरिकल में तो समझ लीजिएगा कि FCC की ही बात हो रही है। और इसके नंबर ऑफ़ एटम्स, यू नो इट, हाउ मैनी नंबर ऑफ़ एटम्स इट्स दिस पर्टिकुलर FCC unit cell contains, that is 4 atoms, you know it very well now. So I am again making the diagram is this thing I am again making so that you can understand the detail part of it. Now you can see the diagram over here, थोड़ा ध्यान दीजिए over here, that I put one atom on the face, and this portion is been attached with this thing, the corner atoms and the atom that is present in the face, और ये diagonal आपका indicate कर रहा है। ठीक है, we have this part also, इसको हमने और अच्छी तरह से पोर्शन को देख लेना है। बेसिकली यहाँ पे एक बड़े बड़े एटम्स यू कैन मेक इट, अगर आप चाहें तो यू कैन मेक इट अ बिग एटम्स ओवर हियर, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो 3 एटम्स यहाँ बड़े बड़े बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस वे यू कैन मेक, हमने छोटे छोटे बनाया, आप इन्हें बड़े बड़े बना सकते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। एंड नाउ यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड ओवर हियर हाउ मेनी आवर्स आर देयर। नाउ अब देखो, ये A लिखा है मैंने, ये C लिखा है, ये B लिखा है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स नहीं, क्योंकि हमें इसी से ही घूमना है और इसी पे काम करना है। सो लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज़ योर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4 एटम्स। अगेन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द वाई 4 एटम्स, क्योंकि यू हैव सीन Z की वैल्यू FCC में 4 निकली थी। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, आई एम राइटिंग इन दिस नंबर 4 एटम्स। आपको मालूम है वही है, एटम्स हैं यानी स्पेयर है, तो आप पहले तो आप वही लिख लीजिए अपना 4/3πr3। अब क्योंकि 4 एटम है तो आगे 4 लगाना पड़ेगा, राइट। सो आपकी वैल्यू आ गई 16/3πr3। ये तो आपने एक काम कर लिया, यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ। नाउ लेट फोकस ऑन द AC ईयर। AC पे भी ध्यान दीजिए, जो हमारा ये है, अगर ये ग्रीन से नहीं दिख रहा है तो मेक इट AC। लाइक AC पे अगर हम देखिए तो यहाँ 1 2 3 एटम, यहाँ पर भी वही कंडीशन है जैसे अभी हमने पीछे BCC में देखा था। तो अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए ना, इस पॉइंट से यहाँ आधा R, यहाँ 2 R पड़ेंगे, यानी हाँ R R R
और यहाँ का आर, यानी टोटल हमें ए सी कितना मिल जाएगा, विल गेट इट 4r। नाउ दिस मच इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि आपके पास यहाँ 3 स्पेयर है, लेकिन ये जो स्पेयर्स आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन है, आर है यहाँ, ये आर है, यहाँ आर है, आर है। तो जो पहला वाला केस था सेम वैसे ही आप कैलकुलेट करिए, तो ए सी आप निकाल। लेकिन आप जो डायग्राम्स देख के चल रहे हैं, आप एक अपने राइट एंगल ट्राइंगल से भी ले सकते हैं, तो आप अपना वो भी लेके चलिए कि जो आपका ट्राइंगल, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बैठ रहा है जो ए बी सी में, उसमें आप ए सी कैसे निकालोगे। ये तो आपने अपना बैठा लिया रेडियस के टर्म्स में, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करो, क्योंकि आपके पास एजेस है ना, जैसे हमने पीछे भी देखा था, तो एजेस हैं, तो आप ए सी फिर वैसे ही निकाल सकते हो कि ए सी अगर आपको निकालना, अब हम पूरा वो नहीं लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को हिसाब किताब, तो हम ए सी लगा रहे हैं, ए सी विल बी ए बी स्क्वायर प्लस योर बी सी स्क्वायर। अब वही वाली बात है, ये क्यूब है, अब ये सब आपकी अगर ए बी उठा के देख लें आप, या बी सी उठा के, दीज आर एजेस एंड एजेस आर व्हाट वी आर टेकिंग ए, तो यहाँ पे व्हाट यू विल गेट इट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाउ मच यू विल गेट इट, you will get the, I am writing the direct answer, I am not calculating much, तो √2a, तो आपका एक पॉइंट ये भी निकल आया, ए सी की वैल्यू एक तो आपकी 4r होगी, दूसरी वैल्यू आपकी √2a, ये आपकी थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। सो दिस मच प्लीज़ कॉपी सो दैट आई कैन रब। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट टेक द वैल्यूज़ ऑफ ए सीज, जो इक्वेशन हमने नंबरिंग इस बार लिख दी ताकि आप परेशान ना हो, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में से फ्रॉम, है ना, ये लिखते हैं ना आप, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 में यू कैन सी द वैल्यूज़ ऑफ ए सी, दोनों ए सीज़ की वैल्यू लिख दीजिए। एक तो आपकी √2a निकला और दूसरी आपकी 4r निकली, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4r अपॉन √2 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका हो गया 4r अपॉन √2। अब अगेन लेट्स फोकस ऑन द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट, so we'll focus on the volume of unit cell। अब यूनिट सेल है तो वही वाली बात है भाई, ए क्यूब लगाएंगे आप। अब ए क्यूब में अब आपने तो यहाँ पे अलग ही वैल्यू ले रखी है, तो 4√2 आर और होल क्यूब कर दीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दैट इज़ अबाउट 64r³ 2√2। I think you are quite grown up girls, or so that you can understand how to calculate it. You have calculators also, and by your knowledge like 4 4 16, 16 4 64, यहाँ r³ आ गया, और √2 को आप 3 बार करेंगे तो एक रूट से रूट कैंसिल होगा तो 2 आएगा, और ये √2 आएगा, तो दिस मच यू कैन गेट द वैल्यू। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ द एटम भी निकल आया है और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी यू हैव गॉट। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन। now this much is clear to you ना। now पैकिंग का फॉर्मूला तो वही पुराना ही लगा रहे हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दोनों की वैल्यू फिट कर दीजिए। आपने जो निकाली है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम 16/3 πr³ अपॉन 3, और उसके नीचे 64 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू योर सॉरी r3 r³, तो यू विल गेट दिस वैल्यू √2 π/6, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब बस परसेंटेज में आपको निकालना है ऐसे, तो बस इस पूरे पोर्शन को 0.74 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका परसेंटेज निकल आएगा आपका, ठीक है। तो आपका परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकल आएगा आपका। बस हम पैकिंग फ्रैक्शन अपनी लिख देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी है ना, वो ज़्यादा अच्छा वर्ड है। पैकिंग एफिशिएंसी आपका बस जो आपने वैल्यू निकाली उसको 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 74% आ गया। अब यहाँ से यू कैन गेट द वैल्यूज़ ऑफ आर की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, a√2, बस वैल्यू पुट कर दीजिए जिसकी सॉरी 2√2, यू गेट द वैल्यू 0.3535a, ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही आप अपना वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू बस आप पुट कर दीजिए, आपकी जो डी की वैल्यू आर की वो हो जाएगी ट्वाइस टाइम 2r होता है, तो बस डी इज इक्वल्स टू 2 × a 2√2। बस आप अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, जो आपकी आ जाएगी 0.707a।
this way you will get the values. तो d का तो पता है ना आपको, मतलब क्या होता है, distance between nearest neighbor in crystal of pure element. I am again repeating, distance between nearest neighbor in crystal of pure elements. Now we have completed all the 3 points in this packing fractions. Please, once again I am specifying you, learn all the formulas, learned points, means in the case of like fill in the blanks is also asked and it is your first time, so please go through the derivations also. No need to learn the diagrams so just I have made so that the concept is clear to you, because it become very difficult to explain what we are writing, right? So this thing you have to keep it in mind. So I think hopefully everything is clear to you all.